in polar coordinates. So you are given any double integral in Cartesian form over some region R. Yes, what this represents? The double integral of any function over some region R represents? Volume. Yes, so this is the volume. And what is the area using double integral? dA. You have to consider this function to be 1. here dA is dx into dy. So either you integrating with respect to x first or y. So आप इसे dy dx भी लिख सकते हो और dx dy भी लिख सकते हो. So you are given a function of two independent variables defined on some region R. If you evaluate this double integral, then this represents the volume of this function over this region R. And the area using double integral is double integral over the region R with respect to x as well as with respect to y. So we consider function to be 1 over here. Now the next is how to convert the Cartesian integral into polar. Today we are doing double integral into polar coordinates. So you are given a function of two independent variables over some region, and if you find the double integral of this function over this region, this represents the volume of this function over this region R. Area is when you put this function to be 1. When you take this function to be 1, then this double integral represents the area of this region R. Right? Now we have to convert this into polar coordinates. So what is the procedure? We put x to be r cos theta, y to be r sin theta. So the function which is given in x and y, by substituting x to be r cos theta and y to be r sin theta, it will be converted into a function of r theta. This point is clear? जो भी फंक्शन आपको एक्स वाई में गिवन है, उसमें आप x को r cos थीटा पुट करो, y को r sin थीटा पुट करो, तो फंक्शन आपका r थीटा में आ जाएगा. Yes, ma'am. Right? Now we have to convert this dA into polar. Now what is dA? This is dx into dy, which is the area of the small rectangle. जब आपने meshes किए थे, then it's an area of this small rectangle dx into dy. Now we have to see the value of this with respect to polar. Okay, so polar में difference क्या आएगा? You have to consider this origin as a pole and this x-axis as a initial ray. Right? यहाँ पे आप कार्टेशियन में डिस्टेंसेस ले रहे हो इस तरह से, x आपका यहाँ वेरी किया, y इतना वेरी किया, तो you will reach at this point, right? But in polar जो भी आपने डिस्टेंस लेना है वो हमेशा पोल से लेना है. आप ऐसे मूव करोगे, एंगल मूव करते जाओगे, राइट? और r कवर डिस्टेंस करते जाओगे, तो you will reach at that point having the coordinates r and theta. This point is clear? मैम Yes. एक बार ये वापस रिपीट करना. What is this? आपको कोई नॉन रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगुलर रीजन गिवन होता है. ओवर दैट रीजन यू हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन. ये आपकी हाइट बन जाती है, राइट? उसको आप स्मॉल एरिया से मल्टीप्लाई करते हो तो यू गेट वॉल्यूम. सो दिस स्मॉल एरिया is dx into dy. When you multiply this with the height, the value of the function at this point, f of dx पे और dy पे, इस पॉइंट पे जब आप वैल्यू निकालते हो तो ये हाइट है. हाइट को जब आपने एरिया से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट द वॉल्यूम. और इस तरह सभी को आप ऐड करते जाओगे, यू गेट द
complete volume of this function over this non-rectangular region R. So when you convert this into polar, you have to consider this origin to be as a pole and this x-axis as a initial ray. So अब हम जो distance measure करेंगे वो always origin से लेंगे इस तरह से. पोल में हम पोलर में कैसे जाते हैं, ऐसे मूव करते हैं, थीटा मूव किया और यहां से हमने डिस्टेंस कवर किया तो हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे. इतना थीटा मूव किया, इतना डिस्टेंस कवर किया तो हम इस पॉइंट पे पहुंचे, राइट? तो पोलर में मूव हमने हमेशा इस तरह से करना है. दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, ma'am. We always take a turn and then cover the distance, then we will reach at this point. So in polar जो आपके पास ये रेक्टेंगुलर रीजन बनेगा, देखो क्या बनेगा. अब आपके पास जब आपके कोई भी नॉन रेक्टेंगुलर रीजन गिवन है तो उसको पोल के अगर आपने अकॉर्डिंग करना है. नाउ सिंस यू हैव टू मूव नाउ विद रिस्पेक्ट टू द एंगल्स, तो जब अब आपके जो पार्टीशंस होंगे वो ऐसे सेक्टर्स की फॉर्म के होंगे. नॉट एग्जैक्टली द रेक्टेंगल बट इट इज लाइक दिस. तो अब ये रेक्टेंगल नहीं रहा, राइट? अब ये आपके पास सेक्टर बन गया. इसका एरिया आपको इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है. दिस पॉइंट इज क्लियर? इन पोलर Yes. अब आपने जब पार्टीशंस किए तो क्योंकि एंगल के विद रिस्पेक्ट होना है, एंगल हमने मूव किया और डिस्टेंस कवर किया, राइट? तो अब ये एग्जैक्टली रेक्टेंगल नहीं रहेगा, ये आपके पास ये आपका थोड़ा कर्वी पोर्शन बनेगा सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ रेक्टेंगल. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एरिया, राइट? जैसे ये मेरे पास एरिया आ जाएगा तो जो हमने फंक्शन कन्वर्ट किया है आर थीटा में उसको उससे मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लेंगे. सो दैट गिव्स यू द वॉल्यूम ऑफ दिस फंक्शन ओवर दिस रीजन. दिस पॉइंट इज क्लियर? तो बेसिकली कार्टेशियन में जो dx इंटू dy है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है r टाइम्स dr d थीटा में. जब आप इसका एरिया निकालोगे इस पोर्शन का तो dx इंटू dy दैट विल बी रिप्लेस्ड विद r इंटू dr इंटू d थीटा, इससे रिप्लेस्ड होगा. नाउ जस्ट सी हाउ. तो मैं एक ओनली पोर्शन लेके आपको बता रही हूँ. लेट्स सपोज इस पोर्शन का एरिया हमने निकालना है, राइट? दिस स्मॉल एंगल इज d थीटा एंड दिस स्मॉल डिस्टेंस इज dr. ये मैंने बिग ड्रॉ किया है बट ये स्मॉल आपके पास होगा पोर्शन. तो ये जो डिस्टेंस है वो dr है और ये जो एंगल है वो d थीटा है, राइट? सो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन. जैसे ये एरिया मेरे पास निकल आएगा वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे dx इंटू dy की. नाउ लेट्स सपोज कि इसके मिड में बिल्कुल सेंटर पर यहाँ पर एक पॉइंट है हैविंग द कोऑर्डिनेट्स r k कोमा थीटा के, राइट? मीन्स दिस डिस्टेंस इज r k एंड दिस एंगल इज थीटा के. इस पोर्शन के बिल्कुल मिड में हमने एक पॉइंट कंसीडर किया विद डिस्टेंस r k एंड विद एंगल थीटा के. देन व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस लार्जर? इस लार्जर वाले का बताओ मुझे एरिया क्या आएगा? सेक्टर. अगर ये मिड पे है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसके r की वैल्यू क्या आएगी? ये रेडियस कितना बनेगा बच्चे अगर ये मिड में है तो? yes, if this distance is rk then ये कितना ऐड आपने और किया? dr PR R dr के by plus PR 2.
dr/2, क्योंकि ये dr था तो ये मिड में है अगर, तो हमने dr/2 ऐड किया, राइट? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r ओवर हियर? इट इज rk प्लस प्लस dr/2। dr/2। सिमिलरली यहाँ पर मैम ये दोबारा बता दें मैंने क्या किया। देखो, हमने ये स्मॉल सेक्टर का, एक मिनट, स्मॉल सेक्टर का एरिया निकालना है और बिग सेक्टर का एरिया निकालना है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एरिया जो है वो इस पोर्शन का आ जाएगा, राइट? तो एक बार हमने एरिया निकालना है इस बिगर वन का, बिगर सेक्टर का, एक बार हमने एरिया निकालना है दिस स्मॉलेस्ट सेक्टर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका एरिया निकल आएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, ma'am. So we want to find out the area of this biggest sector as well as area of this smallest sector. So उसके लिए हमें रेडियस निकालना है, क्या होगा? Now if अगर हमने ये कंसिडर किया है कि ये पॉइंट मिड पर है having the coordinates rk and theta k, then अगर ये dr था कंप्लीट, तो ये जो डिस्टेंस है वो rk है आपके पास। तो rk में हम dr/2 ऐड करेंगे तो इस यहाँ इस पे आ जाएगा रेडियस, इसकी वैल्यू आ जाएगी। द पॉइंट्स लाई ओवर हियर, दैट विल बी rk प्लस dr/2। दिस पॉइंट इज क्लियर? The points which are lying over here having the radius rk plus dr/2. Yes, ma'am. Similarly, the points which are lying over here, इस लाइन पे जो लाई कर रहे हैं, RK minus DR/2. हाँ, rk माइनस dr/2, राइट? और एंगल जो है वो दोनों में d थीटा है, दोनों का एंगल d थीटा है, चाहे बिगेस्ट सेक्टर लो चाहे स्मॉलेस्ट सेक्टर लो। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल? सर्कल का एरिया क्या होता है? Pi R square. पाई आर स्क्वायर। एंगल आपका कंप्लीट 2 पाई है एंड रेडियस r है, बट ये हाफ ऑफ द एंगल इनटू रेडियस स्क्वायर है, राइट? तो बताओ एरिया ऑफ दिस बिगेस्ट सेक्टर विल बी व्हाट? लार्ज वाले सेक्टर का एरिया क्या आएगा? व्हाट इज द एंगल ओवर हियर? D theta. तो क्या आया? d θ/2, एंगल का हाफ इनटू रेडियस स्क्वायर। रेडियस कितना है? RK plus DR/2. rk प्लस dr/2। ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ लार्जेस्ट सेक्टर, राइट? एंगल बाय 2 इनटू द रेडियस स्क्वायर। मैम एक बारी और बता देंगे, वो मेरा लैग हो गया था। ओके, एक्चुअली वी वांट टू कन्वर्ट dx इनटू dy इनटू पोलर। हमें पोलर में देखना है कि ये हमारे पास क्या आएगा। पोलर में ये डायरेक्टली dr d थीटा नहीं बनता। द रीजन इज दिस कि dx dy जो है वो आपका एक रेक्टेंगल का एरिया है, स्मॉल रेक्टेंगल का, पर जब आप पोलर में जाओगे तो ये सेक्टर्स का एरिया बनेगा आपके पास। इट इज कन्वर्टेड इनटू लाइक दिस। कहीं पे आपका पोर्शन ज्यादा होगा और कहीं पे कम, बिकॉज हम एंगल के विद रिस्पेक्ट मूव करेंगे, राइट? So we need to find out the area of this small rectangle, small portion having the coordinates d theta angle and dr radius. So if we want to find out the area of this small portion, so that will be the area of this largest sector minus the area of the smallest one. So we need to find out the area of this largest sector and the area of smallest sector. Now what is the area of this largest sector? If we assume that there is a point at the mid of this, let it be rk and theta k. So this rk is at the mid. So what will be the radius of this complete? It will be rk, ये mid में है, ये अगर dr है तो ये dr/2 हो जाएगा रेडियस, राइट? और स्मॉल सेक्टर में रेडियस कितना हो जाएगा?
आर के माइनस डी आर बाई 2, क्योंकि ये मिड में था पॉइंट। तो ये अगर डिस्टेंस डी आर है तो उसमें आपने डी आर बाई 2 ऐड कर दिया तो यहाँ पहुंच गए, डी आर बाई 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पहुंच गए। तो एरिया आपको रेडियस मिल जाएगा स्मॉल वाले का और लार्ज वाले सेक्टर का। नाउ द एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर विल बी व्हाट? इट विल बी द हाफ ऑफ द एंगल इनटू रेडियस स्क्वायर। Just like the circle, area of circle we know that that will be the half of the angle into the radius square. So this is d by theta 2 because the angle is d theta. So this is d theta by 2 into rk plus dr by 2 whole square. Similarly find out the area of smaller sector. वो क्या होगा? That will be what? d theta by 2 into rk minus dr by 2 का स्क्वायर। ये आ गया। So now you find out the area of this portion. Now what is the area of this portion? That will be the area of larger sector minus the area of smaller sector. क्या आएगा? सिंप्लीफाई करो, d थीटा बाय 2 कॉमन आ गया। Inside you get rk plus dr by 2 whole square minus rk minus dr by 2 whole square. So a square minus b square क्या देगा आपको? 4ab। 4ab। तो 4ab कितना आया? 4 into rk into dr by 2. This is cancel out. So you left with rk dr d theta. अब ये k को वेरी करते जाओ तो आप इसी तरह से सभी स्मॉल पोर्शंस का एरिया निकालते जाओगे। यू विल एड इट, यू गेट द, तो दैट्स व्हाई इन पोलर dx dy will be replaced with r times dr d theta. This point is clear now? मैम Yes. मैम जो हम स्मॉल पोर्शन का निकाल रहे हैं वो जो पॉइंट है उसके नीचे वाला पोर्शन है ना? स्मॉल mid पोर्शन, हाँ ये जो आपने ये था ये वाला एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। कंप्लीट अगर कंसिडर करते हो एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, और ये बचा आपके पास एरिया ऑफ द पोर्शन विच वी वांट टू कैलकुलेट। इसका निकालना था। इसी को हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिलेगा। हाइट जो है वो आपका फंक्शन ऑफ आर थीटा है। क्लियर? यस मैम। So this complete is the area of larger sector. This is the area of smaller sector. इन दोनों को subtract करेंगे तो हमें ये एरिया मिल जाएगा, which is always r times dr d theta. ये देखो यही निकल रहा है हमारा। अब ये k मैंने any point चूज किया, पॉइंट की बजाय अगर आप r d यही ले लो तो आपके पास ये r times dr d theta आ जाएगा। So ये आपने रिमेंबर रखना है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, यू आर गिवन अ फंक्शन इन कार्टेशियन, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो पोलर में बाय putting x to be r cos theta and y to be r sin theta in the main function. You can convert the function in r theta, and dx into dy this will be replaced with r dr d theta. ये मेन आपने याद रखना है। ये नहीं कि dx dy को dr d theta से रिप्लेस करो, that is wrong. It will be replaced with r times dr d theta over that region r. Okay, so this is the volume, and when this function is 1, what will be the area in polar? area बताओ पोलर में क्या आएगा? r dr d theta। Yes, it's a double integration of r dr d theta. तो ये ध्यान में रखना है, फंक्शन की वैल्यू 1 पुट की है, ये as it is रहेगा over the region r. So this is the formula for area and this is a formula for volume. So you have to remember this only. Okay, derivation नहीं है important, आप जस्ट इतना रिमेंबर रखो कि dx dy will be replaced with r dr d theta whenever you are converting Cartesian into polar. This point is clear now? Okay.
क्लियर है बच्चे सबको? Yes, ma'am. Clear. यस मैम। Yes, ma'am. मैम आप एक बारी सबसे फर्स्ट स्लाइड कर देंगे एक बारी? वन सेकेंड। थैंक यू मैम। एंड नाउ नेक्स्ट अब आपने क्या इसमें याद रखना है, यहाँ पर तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी फर्स्ट इंटीग्रेट कर सकते थे, वाई भी, जिसके भी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंटीग्रेट कर रहे हो उसकी लिमिट्स लिखोगे यहाँ पर, फिर दूसरे की लिखोगे। बट जब आपने पोलर में कन्वर्ट किया, ऑलवेज आपके पास पहले आर की ही लिमिट्स आएंगी, देन आएंगी थीटा। इसमें हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, बिकॉज अवर आर इज ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन थीटा, राइट? ऑलवेज आर ही आपका फंक्शन ऑफ थीटा होगा, वी कैन नॉट इंटरचेंज हेयर द लिमिट्स, राइट? तो पहले आपकी आर की ही लिमिट्स आएंगी, देन आपके पास थीटा की लिमिट्स आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर है? यस, दिस पॉइंट इज क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ऑलवेज फर्स्ट आपके पास आर की लिमिट्स लेनी है, मींस फर्स्ट आपने आर के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है, देन आपने विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करना है, बिकॉज थीटा आपके पास कांस्टेंट आएगा, राइट? बट आर डिपेंडिंग ऑन थीटा आ सकता है। नाउ फॉर एग्जांपल, find the limits of integration for integrating fr theta over the region R R region क्या है? The region R is that portion which lies inside the cardioid R is equal to 1 plus cos theta, and outside the circle R is equal to 1. Now just see, first of all draw these two. This is your initial ray, this is pole. Since we know that R 1 plus cos theta का बताओ क्या आएगा? थीटा 0 पे 2 होगा और 180 पे 0. So this is cardioid shape like this. क्लियर है ये सबको? R इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा का ग्राफ आपके पास ये आएगा। आपको पहले ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्केच द ग्राफ ऑफ R इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा बाय राइटिंग ऑल द या आइडेंटिफाइंग ऑल द सिमेट्रीज। तो पहले आप सिमेट्रीज चेक करो, ये सिमेट्रिकल आ जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, सो यू हैव टू कंसिडर थीटा फ्रॉम 0 to पाई, फाइंड आउट द values of R corresponding to theta, then you plot the graph. Okay, similarly R is equal to 1 circle, तो इसमें थीटा आप कुछ भी मूव कर सकते हो, रेडियस ऑलवेज 1 रहेगा, तो ये एक सर्कल है। राइट, सो दिस इज R is equal to 1. ग्राफ क्लियर है सबको? This is the graph of R is equal to 1 plus cos theta and this is the graph of R is equal to 1. Now region देखो क्या कह रहा है, region R which lies inside the cardioid, cardioid के inside हो, and outside the circle R is equal to 1. तो ये portion आ गया आपके पास, outside the circle and inside the cardioid. Clear है? Yes, ma'am. Right, so over this portion you have to find out the limits of integration for integrating fr theta.
So this will be r dr d theta. Now what are the limits of r? अब limits of r कैसे निकालोगे आप? You always take a initial ray passes through pole in the increasing direction. Now see इस पोर्शन में, इस रीजन में, जिस रीजन में इंटीग्रेट करना है आपने, आपका r कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? Your r always varying from here to here. जहां Yes, मर्जी ma'am. आप ये इनिशियल रे पास करो, it always passes through from this to this. यहाँ पर r की वैल्यू क्या है? What is the value? Yes, very good. And what is the value of r over here? 1 plus cos theta. So the limits for r will be 1 to 1 plus cos theta. Clear to everyone? Yes, ma'am. Always pass a ray from the origin. जो भी जिस रीजन में आपको निकालना है उसमें आप इनिशियल रे पास करो. देखो कि आपका r कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है. ओके, सो योर r इज वेरिंग ओवर, r इज इक्वल टू 1 to r इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा. नाउ व्हाट इज द एंगल? इस पूरे पोर्शन में एंगल कितना है? मूव करना पड़ेगा आपको. पाई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. यस, माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2. इधर तो हम गए ही नहीं. सो माइनस पाई बाय 2 टू plus pi by 2, this is a value of theta. This point is clear now? Yes, ma'am. So this is a integration, limits हैं integration की with respect to polar. Clear to everyone? हम आर Yes, की ma'am. लिमिट्स के बारे में बताना कैसे किया? आप पहले तो रीजन ड्रॉ करो जो भी उसने रीजन कहा है. ओके, नाउ यू टेक अ इनिशियल रे फ्रॉम द पोल, पास करो इस रीजन में से. देखो r आपका कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है. नाउ सिंस योर r इज वेरिंग फ्रॉम here the value of r is 1 to this point, to this curve. Here the value of r is 1 plus cos theta. And your theta, इस पूरे रीजन में थीटा कहाँ से कहाँ मूव किया? थीटा आपका मूव किया यहाँ से यहाँ. यहाँ पर थीटा है माइनस पाई बाय 2, यहाँ है प्लस पाई बाय 2. सो योर थीटा इज मूविंग फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2. Clear? यस मैम. No. So now next देखो, find the area enclosed by r square is equal to 4 cos 2 theta. So पहले आप ये रीजन ड्रॉ करोगे. r square is equal to 4 cos 2 theta जो है ये सिमेट्रिकल आ जाएगा ओनली x एक्सिस के अलोंग, और ये ड्रॉ होगा आपका. पहले आप इसको ड्रॉ कर सकते हो बाय चेकिंग ऑल द सिमेट्रीज and then find the values of theta and then corresponding values of r. Right? तो ये ग्राफ आपका प्लॉट होगा. So you have to find out the area of this region using double integral. Now tell me what is the formula for area in polar. r dr d theta. Now we have to write down first the limit of r and then the limit of theta. Now you take an initial ray, passes through from pole, it always varying from here. Here the value of r is 0. 0 and here the value of r is under root 2 into under root cos 2 Cos 2 theta. yes. So this is 2 cos 2 theta square. Right? तो हमारा r वेरी कर गया 0 से 2 square root of cos 2 theta. And your angle कितना है? जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको ये पता चलेगा पाई बाय 4 पे ये 0 हो रहा था, माइनस पाई बाय 4 पे 0 हो रहा था. देखो आप देखोगे ना, पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2 बन गया. तो पाई बाय 2 पे cos की वैल्यू 0 आती है तो r इज 0. तो ये यहाँ से ये जो एंगल है वो माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 है. जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा ये.
ओके, तो एंगल जो है वो आप ये भी कर सकते हो, आप 0 से ले लो π/4 और फिर 4 टाइम्स कर दो, तो ये चारों पोर्शंस का एरिया आ जाएगा, बिकॉज सबका एरिया सेम है। तो आप सिर्फ पहले वाले पोर्शन का निकाल लो एंड देन 4 टाइम्स कर दो, यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस कंप्लीट वन, राइट। तो एंगल आपने अगर ओनली फर्स्ट पोर्शन का निकाला है तो योर थीटा विल बी वेरिंग फ्रॉम 0 to π/4, बिकॉज π/4 पे ये आपका 0 हो रहा है, तो ये टर्न जो है वो ये 0 π/4 पे आके हो रहा है। So the maximum angle is from 0 to π/4 in the first portion. This point is clear? मैम Yes, हमको ma'am. 0 to π/4 करना है, -π/4 to π/4 करना है। अगर आप -π/4 to π/4 करोगे तो इसे ट्वाइस कर लो, अच्छा, ठीक है that कोई depends, right? ओके तो अगर आप ओनली फर्स्ट पोर्शन का निकाल रहे हो तो 4 टाइम्स कर दो। मैम तो आपके आपने पास एंगल कैसे एंगल angle बच्चे ये कैसे आपको निकालना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट टाइम किए हैं ग्राफिंग का। पहले आप सिमेट्री चेक करो, तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्री आ जाएगी, ठीक है। फिर हमने थीटा जो है वो वेरी करना है 0 से π/π में, ठीक है। बट हमें यहाँ पे आर आपके पास क्या आ रहा है, इट इज 2 ± 2 cos 2 थीटा स्क्वायर रूट। तो हमें ये देखना है कि cos 2 थीटा किन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव में ये डिफाइंड नहीं होगा, बिकॉज आपके पास आयोटा वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी, राइट। तो आपको ठीक है थीटा मैम। देखना पड़ेगा कि कहां से कहां आपने लेना है। मेरे पास अभी आ रहा है 0 to π विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री, थीटा की वैल्यूज आ रही हैं 0 to π सिमेट्री की हेल्प से। तो आप इसकी वैल्यू 0 से लेके निकाल लो, r² की वैल्यू निकाल लो, फिर r की वैल्यू निकाल लो। तो आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि व्हेन यू कंसीडर थीटा टू बी π/4, r² की वैल्यू आ जाएगी 4 × cos 2 × π/4। तो 2 × π/4 मीन्स π/2। cos π/2 कितना होता है? 0। तो आपका r जो है वो 0 आएगा एट π/4। इसका मतलब ये जो टर्न आपका आ रहा है लीफ में, ये π/4 पे 0 हो रहा है। सो मैक्सिमम एंगल आपका 0 से π/4 था। समझ आया? तो आप ये ड्रॉ करोगे तब आपको एंगल पता चलेगा कि π/4 तक गया ये। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है मैम। अगर यहाँ पे cos 2 थीटा की बजाय थीटा होता, फिर बताओ क्या आता एंगल? किस पे 0 होता? π/2 पे। π/2 पे। तो आपने ये मतलब एक सर्कल की तरह बनेगा फिर। तो आपने क्या थीटा क्या लेना है? 0 से π/2। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे 0 हो रहा है, मतलब फर्स्ट पोर्शन में आपका एंगल कहाँ से कहाँ मूव किया। दिस पॉइंट इज क्लियर? यस मैम। Now the third type of problem in polar is convert करना है आपने Cartesian integral into polar. So you have to evaluate this double integral by reversing the by converting the Cartesian into polar. और रीजन R आपको क्या गिवन है? This region R is the semicircular region bounded by x-axis and the curve y is equal to square root of 1 minus x square. Evaluate this double integral by changing Cartesian integral into polar, where R is this region. Question clear है सबको? Yes, you have to evaluate this double integral by changing the Cartesian integral into polar को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ द रीजन। अब आपको देखो क्या गिवन है, इट्स अ सेमी सर्कुलर रीजन विच इज बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस।
So now you consider this as pole, this as initial ray. Take a ray passes through origin. अब मुझे बताओ R आपका कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 0 to 1. And angle 0 to pi. 0 to pi. अब आप फंक्शन को कन्वर्ट करो r थीटा में, तो x को अगर आप r cos थीटा पुट करते हो, y को r sin थीटा पुट करते हो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर? e टू द पावर r स्क्वायर. यस मैम. और dy dx किससे रिप्लेस होगा? r dr d थीटा से. तो ये बन गया. क्लियर? सो इसका इक्विवेलेंट पोलर में इंटेग्रल ये है. क्लियर है सबको? dy dx रिप्लेस हुआ r dr d थीटा से, फंक्शन मैंने कन्वर्ट कर दिया r थीटा में. Yes. Clear to everyone? Yes, ma'am. Now you integrate this with respect to r first. अब इसको r के with respect integrate करो. तो you put r square to be t, 2r dr is dt. So if your r is 0, t is also 0. If your r is 1, your t is also 1. So the limits for t will be 0 to 1. E to the power t into dt by 2. ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा ली मैंने और ये कन्वर्ट कर लिया. नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? e to the power t so when you integrate substitute the limits, you get e to the power 1 minus e to the power 0 which is 1. और एंगल के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो ये पाई आ गया. ये आंसर आ गया आपका. क्लियर है? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डबल इंटीग्रल. क्लियर है सबको? यस. दिस विल बी रिप्लेस्ड विद r इंटू dr d थीटा. फंक्शन को कन्वर्ट कर लो r थीटा वाले में. नाउ राइट डाउन द लिमिट्स फॉर r फर्स्ट. सो इन द रीजन यू टेक इनिशियल रे, पासेस थ्रू पोल. देखो r कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है. r आपका ऑलवेज 0 से इस पे जा रहा है. इस पे r की वैल्यू है 1. वाई 1 बिकॉज ये आपको ये दे रखा है. सो दिस इज i स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन्स r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन्स r इज 1. एंड योर एंगल इज 0 to pi बिकॉज सेमी सर्कल है. अगर पूरा सर्कल होता तो 0 to 2 pi ले लेते आप. क्लियर? Yes, Ma'am, ma'am. clear. यस मैम. क्लियर है ना सबको? एक और क्वेश्चन में देखते हैं. Yes. Evaluate this double integral by changing it into Cartesian into polar. So first of all you draw the region. x की लिमिट दे रखी है 0 से y, y की लिमिट्स दे रखी हैं 0 to 6. x is equal to y line. Your x is varying from 0 to y. It means you are taking a parallel line to x-axis. Okay? तो देखो और y की मैक्सिमम दे रखी है 6. तो y is equal to 6 लाइन. तो कौन सा पोर्शन आया? Yes, tell me. कौन सा पोर्शन आएगा? Yes, ऊपर वाला, ये वाला. राइट? y is equal to 6 और x is equal to 1. बिकॉज जब आपने पैरेलल लाइन ली x एक्सिस के, योर x is varying from 0 to y. x आपका वेरी कर रहा है 0 से y पर. एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इन दिस रीजन इज 0 एंड मैक्स वैल्यू इज 6. तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू पोलर.
तो पोलर में कन्वर्ट करने के लिए इसको आपने ओरिजिन पोल मान लिया. नाउ यू टेक अ इनिशियल रे पासिस थ्रू दिस. अब बताओ कि आपका आर कहां से कहां वेरी कर रहा है. यस, कहां से कहां वेरी कर रहा है आपका आर. ऑलवेज 0 से इस लाइन पे जा रहा है, जहां मर्जी ले लो. यस मैम. इस लाइन पे जा रहा है. इस लाइन पे क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 6. so it means r sin theta is equal to 6, right? It means your Yes, r ma'am. is 6 upon sin theta. Sin Sin theta. theta. तो ये आपके पास लिमिट्स आ जाएंगी r की 0 to 6 upon sin theta, right? अब एंगल बताओ. अगर x is equal to y है, इसका मतलब r cos theta is equal to r sin theta. It means tan theta is equal to 1, तो थीटा कहाँ पे आएगा, पाई बाय. Pi by 4. तो ये एंगल है आपका पाई बाय 4 और यहाँ पे एंगल कितना है, पाई बाय 2. तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ गई, पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, राइट. एक्स की जगह हमने लिख लिया आर कॉस थीटा और dx dy रिप्लेस हो गया आर डी आर डी थीटा से. सो दिस इज द इक्विवेलेंट इंटेग्रल इन पोलर. क्लियर है सबको. यस. मैम ये एंगल का बता दीजिए एक बार. इस पोर्शन में हमने एंगल देखना है ना, कहाँ से कहाँ है. यहाँ पे एंगल की वैल्यू देखनी है क्या होगी. ये आपके पास लाइन है x इज इक्वल टू वाई. x इज इक्वल टू वाई मीन्स योर r cos थीटा इज सेम एज दैट r sin थीटा, है ना. इसको सिंप्लीफाई करो तो tan थीटा 1 आ गया. सो थीटा इज पाई बाय 4. यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 0 मीन्स cos थीटा इज 0. थीटा 0 कहाँ होगा, पाई बाय 2. तो थीटा आपका आ रहा है पाई बाय 4 से पाई बाय 2. क्लियर. यस मैम. ये वाला पोर्शन आ जाएगा आपके पास. सो इन दिस वे वी विल फाइंड आउट द लिमिट्स. पहले आपने आर की लिखनी है, देन आपने थीटा की लिखनी है. क्लियर है सबको. नेक्स्ट टाइम मोर प्रॉब्लम.